Okay, so good evening, everybody. Welcome to this much awaited webinar on oral pathology. I'm Dr. Tejaswini Malasane. I'm practicing in Pune since 18 years. Before I start this webinar and before I introduce you to our speaker, Dr. Rajkumar R. Chaube, I want few things which I want you to see and take notice of few things. Please go to the chat box section and you will be able to see a group, a WhatsApp group which we have created. If you require, please join the group, because in case we require any change of settings or passwords or IDs, then we can share it over there. Secondly, please keep your mics mute, cameras off. The next thing and the most important thing is that we are not going to include any question answer session in today's webinar, since it is a very huge topic and we need to cover most of the things. Any questions and any doubts which are from your side, please put those doubts and questions on that WhatsApp group. So please take note of that link I have shared in the chat box. I have also shared Dr. Rajkumar Chaube's number, so that if you require to ask anything, you can ask it after the webinar. So today's basically the procedure, the webinar is mostly on the procedure side, the practical implication of the oral pathology subject in our general dentistry. We will keep it related mostly to the biopsy part, the procedure of the biopsy, and various requirements and investigation part. The lesion part, we will cover it, but in a very short basis, like just briefly, we will just introduce what are the most common lesions and all. So now I will introduce you to our speaker, Dr. Rajkumar R. Chaube. He is MDS in oral maxillofacial pathology and microbiology. He has 2 publications in BMJ, British Medical Journal. He got Best Paper Presentation Award in National Conference of Oral Pathology, Amritsar. He has conducted successful lectures and hands-on courses on cytology and biopsy. He has many publications in national and international journals under his name. He has been elected as president of IDA Ghazipur branch twice. He is a successful and renowned dental practitioner since past 18 years in Ghazipur district. Friends, this is just a short description of this huge personality, I can say. He's a very great personality. I know him since 18 years, and I'm very proud that he has completed his MDS after 14 years after the graduation. 14 years after the graduation. So I will not be surprised if he does his PhD at the age of 60. He is complete book of dentistry. Yeah, please believe me on that. Yeah. So now let us just jump on to the main topic, and I request Dr. Rajkumar Chaube to please take over from here and share the screen and the slides. Thank you. Thank you, Dr. Tejaswini. Good evening all. I am audible? Yeah. Dr. Tejaswini? Okay, thank you. So, thank you, Dr. Tejaswini. Tejaswini is my classmate since graduation. अभी जो है ये प्रोग्राम जो हमने लॉन्च किया आज, वेबिनार जो हम करने जा रहे हैं, उसका मेन पर्पस यही है कि आप लीजन को समझिए और ओरल पैथोलॉजी को आप अपने डे टू डे डेंटल प्रैक्टिस में यूज करिए, क्योंकि इससे ही ये मेरा बताने का मतलब ये है, इसके पीछे उद्देश्य ये है कि आप अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा सा डॉक्यूमेंट करिए अच्छे तरीके से और आप इससे कुछ और कमाइए। ओरल पैथोलॉजी को बहुत निगलेक्ट करते हैं लोग। कोई भी लीजन रहता है, रेडियोग्राफ लिए पेरियापाइकल पैथोलॉजी बोल के उसको छोड़ देते हैं। तो पेरियापाइकल पैथोलॉजी बोल के रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर दिया या उसको निकाल दिया, इम्प्लांट डाल दिया और इस तरीके से प्रैक्टिस चलती है। तो ऐसा नहीं करना है। पेरियापाइकल पैथोलॉजी में बहुत कुछ हो सकता है। आपका रिएक्टिव लीजन्स हो सकते हैं, नीचे सेंट्रल जाइंट सेल ग्रानुलोमा हो सकता है, आपका ओडोंटोजेनिक ट्यूमर हो सकता है, आपका उसमें सिस्ट हो सकता है, कि कोई फाइब्रो ऑसियस लीजन हो सकते हैं। तो ये सारे चीज़ों को ध्यान में रख के मैंने आज ये वेबिनार कंडक्ट करवाने का डिसाइड किया, और इसमें मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर तेजस्विनी का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप ये प्रोग्राम करवाइए।
So this is the topic name which is involve oral pathology practice in your day-to-day dental practice. These are the contents of my presentation. Many patients came to your clinic with the chief complaint of red and white lesion, some exophytic growth on the tongue, or white complete plaque sheet like appearance on the tongue, or any labial mucosa, or any unhealed socket after getting treated by any other doctor or by you. The socket is unhealed. So at this condition what to do? Right now what to do? सभी लोग को यही दिक्कत होती है कि अब क्या करना चाहिए. तो अब क्या करता है, इफ he or she has knowledge about the multivitamins, some immunomodulator drugs or anything, he can prescribe everything and then this patient is referred to the higher center. But this is not the treatment. आप उसको हायर सेंटर में भेज दोगे तो उससे फायदा आपका कुछ नहीं हुआ. हायर सेंटर में चला गया, ठीक है, वहां एग्जामिन हुआ, लेकिन ऐसा करने से आपको नुकसान है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस जो है कहीं ना कहीं हैम्पर कर रही है. तो ओरल पैथोलॉजी को आप इग्नोर मत करिए. ओरल पैथोलॉजी को आप अपनी प्रैक्टिस में डालने की कोशिश करिए. इस प्रेजेंटेशन का, इस वेबिनार का एम ही यही है कि आप प्रैक्टिस को समझिए और आप अपनी इनकम को बढ़ाइए. इनकम बढ़ाने के लिए और क्या चीज है, WHO announces that in today's scenario, WHO has stated that 5-year survival rate of malignancy is only 40 to 50%. Means we as a dentist, we have the caliber, we have the ability to diagnose this type of lesion as early as possible. और जितना जल्दी हम इसको डायग्नोज करेंगे उतना जल्दी हम इसका प्रोग्नोसिस अच्छा करेंगे इन कंसर्न विद द ट्रीटमेंट, और उसके साथ हम इसको इलाज करके 5-year सर्वाइवल रेट ऑफ मैलिग्नेंसी भी इंप्रूव करेंगे. तो ये करने के लिए ये वेबिनार का मेन एम है. सो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन देयर आर सम गाइडलाइंस हाउ टू चेक द OPMDs. OPMDs क्या है कि प्री मैलिग्नेंट लीजन्स होते हैं. प्री मैलिग्नेंट लीजन्स क्या है, कोई भी लोकलाइज्ड पार्ट, चीक पे हो, चाहे लिप पे हो, चाहे टंग पे हो, कहीं पे भी कोई भी लोकलाइज्ड पार्ट दैट हैव द हायर एफिकेसी टू कन्वर्ट इनटू द मैलिग्नेंसी, उसको प्री मैलिग्नेंट लीजन बोलते हैं. लोकलाइज्ड पार्ट है वो. और प्री मैलिग्नेंट कंडीशन क्या है, प्री मैलिग्नेंट कंडीशन अकॉर्डिंग टू द WHO इट इज अ जनरलाइज्ड स्टेट ऑफ द बॉडी विच इज प्रोन फॉर द कन्वर्शन टू द कैंसर. मतलब बॉडी में ही ऐसा कंडीशन इन्वॉल्व हो गया है, ऐसा कंडीशन डेवलप हो गया है कि आपका कोई भी लोकल साइट जो प्री मैलिग्नेंट लीजन है या कोई भी ऐसा लीजन है वो आपका कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि उसमें आपकी हो सकता है जेनेटिक एक्सप्रेशन चेंज हो गया हो सकता है कि आपका इम्यूनिटी चेंज हो गया हो, तो ऐसे आपका वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है. तो दीज आर द लीजन्स एंड सम आर द कंडीशंस. बाय गेटिंग टुगेदर ऑल लीजन और कंडीशन सबको जोड़ दिया जाए तो उसको ओरल पोटेंशियल मैलिग्नेंट डिसऑर्डर्स बोलेंगे. तो OPMDs उसको शॉर्ट फॉर्म में हमने यहाँ लिखा हुआ है. तो अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन कैसे करता है, उसको कैसे एग्जामिन करना है, पहले केस हिस्ट्री लेना है. किसी भी पेशेंट का आया उसका केस हिस्ट्री रिकॉर्ड करिए, उसको पूछिए. यू शुड आस्क अबाउट द हैबिट्स और एनी नोटिसेबल थिंग, ही और शी नोटिस एनीथिंग इन हिज और हर माउथ, तो वो पूछना है. एग्जामिन द ओरल कैविटी और एक्स्ट्रा ओरल पार्ट बाय कलर, कंटूर, कंसिस्टेंसी, फंक्शन, एनी इंड्यूरेशन और एनी अल्सरेशन इज प्रेजेंट दैट इज मोर देन 2 weeks. सबसे इंपॉर्टेंट लिम्फ नोड पाल्पेशन. क्या होता है, सारे क्लिनिक में पेशेंट आते हैं, कोई भी आया, डॉक्टर ने खाली ऐसे मुंह में देखा, इंस्पेक्शन किया लाइट ऑन करके और देख के बंद कर दिया बस. कभी भी कोई भी डेंटिस्ट पेन नहीं उठाता है लिम्फ नोड पाल्पेट करने का. तो मेरा यह है कि आप लिम्फ नोड पाल्पेट करिए. लिम्फ नोड पाल्पेट करिए, आइदर इट इज पाल्पेबल और नॉन पाल्पेबल. इफ इट इज पाल्पेबल देन हाउ मेनी लिम्फ नोड्स आर देयर, और उसके बाद इट इज टेंडर और नॉन टेंडर, मूवेबल और फिक्स्ड. अगर फिक्स्ड है तो देयर इज डेंजरस साइन, आपको वहां संभलना है, वहां पे आपको जांच करनी है, क्योंकि अगर मूवेबल है तो वो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होता है, लेकिन अगर फिक्स्ड है तो वो मैलिग्नेंसी हो सकती है. तो आपको वो सब भी चीजें देखनी है. दूसरा, एग्जामिन करना है एनी ट्रॉमा बाय द प्रेजेंस ऑफ शार्प कट्स और बाय द पैराफंक्शनल हैबिट्स ऑफ द पेशेंट, और इज देयर एनी डेंटल रिस्टोरेशन बाय जैसे सिल्वर अमलगम की फीलिंग है, कोई ऐसा प्रोस्थेसिस है जो कंटिन्यूअस वहां पे पेन दे रहा है, अल्सर दे रहा है, इरिटेशन दे रहा है, तो ये सब रिस्टोरेशन भी चेक करना है. ये सारी चीजें आपको मुंह के अंदर चेक करनी है, तो आप
प्री मैलिग्नेंसी का कंडीशन का पता लगा सकते हैं, लीजन्स का पता लगा सकते हैं एज अर्ली एज पॉसिबल। हम जो प्री मैलिग्नेंट लीजन और प्री मैलिग्नेंट कंडीशन डील कर रहे हैं, जिसको ओपीएमडीज बोल रहे हैं, तो प्री मैलिग्नेंट लीजन में हम ल्यूकोप्लाकिया बता रहे हैं। ल्यूकोप्लाकिया इज ए व्हाइट लीजन which is present in the oral cavity and which cannot be diagnosed by clinically or histopathologically। क्लिनिकली हम इसको व्हाइट लीजन बोलेंगे। अगर उसका कोई भी इटोलॉजी जैसे शार्प कस्प है, कोई फंगल इंफेक्शन है, अगर क्लिनिकली आप डायग्नोस कर दे रहे कि ये फंगल है, तो उसको ल्यूकोप्लाकिया नहीं बोलेंगे। किसी इरिटेशन की वजह से हो रहा है तो उसको ल्यूकोप्लाकिया नहीं बोलेंगे। ल्यूकोप्लाकिया वही चीज है जिसमें आप उसको कोई डायग्नोसिस न दे पाए, उसी को ल्यूकोप्लाकिया बोलते हैं। वो व्हाइट कलर का होता है। उसमें दो टाइप्स के हैं, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस में क्या होता है, व्हाइट में थोड़े थोड़े रेडिश पार्ट हो जाते हैं, तो उसको स्पेकल्ड ल्यूकोप्लाकिया बोलते हैं। तो होमोजीनियस ल्यूकोप्लाकिया, देयर इज थंब रूल दैट 20% ऑफ ल्यूकोप्लाकिया हैज द डिस्प्लास्टिक चेंजेस। डिस्प्लास्टिक चेंजेस क्या हैं? डिस्प्लास्टिक चेंजेस ये हैं जिसमें सेलुलर अटिपिया हो जाता है, या सेल्स अटिपिकल सेल्स बनने लगते हैं, या इपिथेलियम का जो आर्किटेक्चरल अरेंजमेंट है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। मतलब स्ट्रेटम बेसिले, स्पाइनोजम, ग्रैनुलोजम, कॉर्नियम जो नॉर्मली इपिथेलियम अरेंज होने चाहिए वो ना होके प्रीमैच्योर इपिथेलियम आ जाते हैं, मतलब जल्दी से कैरेटिनाइजेशन होगा। एक लेवल के बाद कैरेटिनाइजेशन होती है तो वो पहले ही कैरेटिनाइजेशन होता है। तो ये सारी चीजें होती है। तो वो डिस्प्लास्टिक चेंजेस जो है 20% ल्यूकोप्लाकिक केसेस में मिलते हैं। और इरेथ्रोप्लाकिया, जैसे ये दूसरी स्लाइड में दिख रहा है, बहुत ज्यादा रेडिश पार्ट है, उसमें स्लाइट व्हाइट लीजन्स हैं, तो ये इरेथ्रोप्लाकिया है क्लिनिकली। तो ये 90% इरेथ्रोप्लाकिया हैज द डिस्प्लास्टिक चेंजेस। सेकेंड, हम प्री मैलिग्नेंट कंडीशन की तरफ आते हैं, तो उसमें दो कंडीशन हम लोग कवर करने जा रहे हैं, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस एंड लाइकन प्लानस। तो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस क्या है? आपका ब्लांच्ड ओपेक व्हाइट कलर का बैंड दिखेगा बायलैटरली, पेशेंट इज अनेबल टू ईट, वो सारा चीज मैं डिस्कस करूंगा आपको। तो ये चीजें जो है ये ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है। लाइकन प्लानस होता है जो ऑटो इम्यून म्यूकोक्यूटेनियस डिसीज है, तो लाइकन प्लानस व्हाइट कलर का रेडिएटिंग लाइट रहेगा, उसके भी 8 टाइप के लाइकन प्लानस हैं, वो सब भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी आपसे आगे। तो ओपीएमडीज जब आपके क्लिनिक में आता है तो आपको उसको डायग्नोस करना है ओपीएमडीज को। तो अकॉर्डिंग टू सिल्वरमैन ही स्टेटेड दैट 36% ऑफ, मतलब सारे ओपीएमडीज कैंसर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि सारे ओपीएमडीज कैंसर में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द ओपीएमडीज वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सिल्वरमैन के हिसाब से क्या है कि 36% जो डिस्प्लास्टिक चेंजेस रहते हैं दैट गेट कन्वर्टेड इनटू द कैंसर, और 16% ओपीएमडी जिसमें डिस्प्लास्टिक चेंजेस नहीं है तो वो भी कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर डिस्प्लास्टिक चेंजेस नहीं भी हैं तो भी वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस कम है। तो आपके क्लिनिक में 3 चीज है, आप 3 चीज से पता लगा सकते हैं कि इसमें डिस्प्लास्टिक चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। क्योंकि अगर डिस्प्लास्टिक चेंजेस आ रहे हैं तब तो आपको डरने की जरूरत है, क्योंकि वो कैंसर में कभी भी कन्वर्ट हो सकता है, उसके चांसेस ज्यादा है कैंसर में कन्वर्ट होने के लिए। तो वो 3 चीज है। एक तो क्लिनिकल बेसिस पे आप डायग्नोस करेंगे, अगर कोई भी लीजन 200 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया से ज्यादा है तो वो आपको थोड़ा डेंजरस साइट है, स्ट्रॉन्ग प्रेडिलेक्शन है वहां पे कि वो कन्वर्ट हो जाए मैलिग्नेंसी में। नॉन होमोजेनियस लीजन अगर रेड और व्हाइट दोनों मिक्स है तो भी चांसेस ज्यादा है कि वो मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो जाए। और किस साइट पे वो लीजन प्रेजेंट है, जैसे यू शेप साइट है जिसमें मैलिग्नेंसी कॉमनली होती है, फॉर एग्जांपल फ्लोर ऑफ द माउथ, lateral borders of the tongue, retromalar area and the buccal mucosa, ये पूरा यू शेप एक आर्च बनाता है। तो इस यू शेप में आर्च में भी अगर टंग में और फ्लोर ऑफ माउथ में अगर कोई लीजन है तो वो लीजन स्ट्रॉन्ग प्रेडिलेक्शन है उसका कन्वर्शन में मैलिग्नेंसी के लिए। अब हिस्टोलॉजिकली बात करते हैं हम, तो हिस्टोलॉजिकली आपने अगर सैंपल निकाला, चाहे आपने उसका साइटोलॉजी किया, चाहे आपने उसका बायोप्सी किया, तो उसमें हम बायोप्सी में हम जो गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन होता है बायोप्सी, उसके अंदर हम डिस्प्लाजिया ग्रेड देखते हैं, कितना ग्रेड का डिस्प्लाजिया है, माइल्ड डिस्प्लाजिया है, मॉडरेट है, सीवियर है, कितना डिस्प्लाजिया है, उस ग्रेड के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं या कार्सिनोमा इन सीटू है या बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो टूट गया है और सारे एटिपिकल सेल जो है कनेक्टिव टिश्यू में लैमिना प्रोप्रिया में चले गए हैं तो वो कैंसर में हो गया। तो अकॉर्डिंग टू डिस्प्लाजिया ग्रेडिंग वी डिसाइड दिस लीजन इज हाईली ऑन द रिस्क टू कन्वर्ट इनटू द कैंसर। कुछ जो है बायोमार्कर्स होते हैं
हॉली ग्रेल के हिसाब से बायोमार्कर्स वहाँ पे प्रोलिफरेटिंग बायोमार्कर्स होते हैं, जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का एग्जामिन करते हैं। आप वो साइटोलॉजी पे भी प्रोटीन को एनालाइज कर सकते हैं, और आप एपिथेलियम में भी प्रोटीन को, मतलब जो बायोप्सी लेते हैं उसके अंदर भी आपको ये बायोमार्कर्स को एनालाइज कर सकते हैं क्लिनिकली। P53, Ki67 और प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन, दीज आर द बायोमार्कर्स। आप लैबोरेटरीज को, पैथोलॉजिस्ट को पूछेंगे कि सर ये वाला IHC से हमको जो है बायोमार्कर से हमको जांच करके बताइए, तो वो आपको बताएगा कि इनके इसमें ये बायोमार्कर्स मिलते हैं। ये बायोमार्कर्स उन्हीं में मिलते हैं जो सेल्स कन्वर्शन के पोजीशन पे रहते हैं, जो जिसमें चेंजेस आ सकते हैं, जो मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो सकता है, उसमें मिलते हैं। HPV पॉजिटिविटी, मिलर के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मिलर, जितने भी प्री कैंसरस लीजन हैं उसमें HPV पॉजिटिविटी मिलती है, मतलब मैक्सिमम इसमें मिलती है, जबकि नॉर्मल एपिथेलियम में नहीं मिलता HPV पॉजिटिविटी। तो अकॉर्डिंग टू मिलर ही हैज स्टेटेड दिस थिंग। DNA एन्यूप्लॉइडी चेक करना है, लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी चेक करना है। फीमेल्स जो 50 ईयर्स से ज्यादा एज है, मतलब फीमेल्स भी प्रेडिलेक्शन पे ज्यादा है। क्यों फीमेल्स है, मेल्स क्यों नहीं है? फीमेल्स इसलिए है, वहां पे कुछ जेनेटिक एक्सप्रेशन कुछ अलग है फीमेल्स का, और लिटरेचर्स में बहुत सारे लिखे हुए हैं। तो फीमेल्स आर मोर प्रोन फॉर द मैलिग्नेंसी एज कंपेयर टू द मेल। एंड एज ग्रुप 50 ईयर्स से एज अगर ज्यादा है तो भी वो कन्वर्शन में जा सकता है मैलिग्नेंसी के लिए, अगर कोई भी प्री कैंसरस लीजन है तो। अब स्मोकिंग कर रहा है, टोबैको ले रहा है, कोई हैबिट है उसको, और उसको व्हाइट लीजन है तो वो अलग चीज है। और कोई नॉन स्मोकर है और उसको व्हाइट लीजन और रेड लीजन है, तो वो जो नॉन स्मोकर है उसका रिस्क ज्यादा है कन्वर्शन में। क्यों? क्योंकि अगर हैबिट है और लीजन है तो वो बिकॉज ऑफ दैट हैबिट epithelium get converted, or they try to avoid they try to respond this thing, तो वो स्टिमुलेट होता है। आपका इटियोलॉजी है तो डेवलप हुआ, वो अलग बात है। अगर नॉन इटियोलॉजिकल केस है, मतलब जिसमें स्मोकर है ही नहीं, वो कुछ हैबिट है ही नहीं उसको, और उसमें अगर इपिथेलियम दिखता है तो इसका मतलब वो ज्यादा चांसेस है कन्वर्शन के उसके। अब हम प्री कैंसर लीजन की बात करते हैं, तो ये एक केस है जिसमें आपको लेफ्ट और राइट साइड में व्हाइट लीजन दिख रहे हैं। तो ये इतना बड़ा लीजन है कि हमने इसको इंसिजनल बायोप्सी करके थोड़ा सा टिश्यू निकाला उसमें से। क्लिनिकली हमने इसको डायग्नोस किया था ल्यूकोप्लाकिया, लेकिन जब हिस्टोलॉजिकली देखा हमने तो ये हाइपर पैराकैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम दिखा और फाइब्रोसेलुलर कनेक्टिव टिश्यू, उसमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी बहुत ज्यादा दिखे। जो रेटी रीजेस है, ये ब्रॉड रेटी रीजेस दिखे उसके अंदर। हाँ, तो ये ब्रॉड रेटी रीजेस, और जो डिस्प्लास्टिक एपिथेलियम था वो लोअर 1/3, एपिथेलियम के लोअर 1/3, बेसल 1/3 में ही मिला वो डिस्प्लास्टिक चेंजेस। तो इसको हमने माइल्ड डिस्प्लास्टिक एपिथेलियम का मैंने इसको डायग्नोस किया हिस्टोपैथोलॉजिकली। अब माइल्ड भी होता है, मॉडरेट होता है, सीवियर होता है, कार्सिनोमा इन सीटू होता है, इतने सारे चीज होते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, ये सारे बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट होते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट हुआ मतलब ये सारे अटिपिकल सेल्स और डिस्प्लास्टिक चेंजेस जो हैं वो एपिथेलियम तक के ही लिमिटेड है। तो आप उसको ट्रीट कर सकते हैं विद स्लाइट प्रिकॉशन। हाँ, अगर वो बेसमेंट मेम्ब्रेन टूट जाता है तो कैंसर में, मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो गया, वो आपको पैथोलॉजिस्ट बताएगा। तो आपको पैथोलॉजिस्ट की मदद लेनी ही पड़ेगी हर चीज में। अब कोई बोलेगा कि मुझे क्या जरूरत है इसकी, पैथोलॉजिस्ट की मदद लेने की क्या जरूरत है, मैं तो ऐसे ही ट्रीट कर देता हूँ मल्टीविटामिन देके, कुछ ये देके। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि आप अपने क्लिनिक को डॉक्यूमेंट करिए, आप अपनी क्लिनिक को ऐसा बनाइए कि कुछ समय के बाद, जब आप पेशेंट करते जाएंगे लगातार कुछ दिन के बाद, तो आपने जो डायग्नोसिस किया वो क्लिनिकल डायग्नोसिस है, और जो पैथोलॉजिस्ट ने डायग्नोसिस दिया वो जो है फाइनल डायग्नोसिस है। उससे आपको पता चलेगा कि आपने 10 साल में कितने कितने अलग अलग टाइप के पेशेंट्स किए। आपका एक आर्काइव्स तैयार हो जाएगा, आपका एक लाइब्रेरी तैयार हो जाएगी, अकाउंट तैयार हो जाएगा, और आपकी क्लिनिक एक अच्छी डॉक्यूमेंटेड क्लिनिक रहेगी। तो मैं प्रमोट करूंगा कि आप जितने भी सैंपल्स निकलते हैं, चाहे आप दांत निकालिए, दांत निकालने एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, उसके अंदर से जो भी ग्रेनुलेशन टिश्यू भी निकल रहा है उसको भी सेंड करिए पैथोलॉजिस्ट के पास, तो वो आपको जांच करके बताएगा। दूसरा केस है, इन दिस केस पेशेंट हैज कंप्लेंट ऑफ द बर्निंग सेंसेशन एंड देयर इज व्हाइट एंड रेडिश लीजन। I clinically diagnosed it as a lichen planus, but it is lichen planus or not, for that I want a biopsy. So I do the biopsies, by simply incisional biopsy I do, and after histopathological evaluation I found that there is a inflammatory band which is present juxtaepithelial epithelially. तो आपको एपिथेलियम के ठीक नीचे बहुत सा एक बैंड दिखेगा जिसमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स, लिम्फोसाइट्स प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट होते हैं,
और जो बेसल लेयर होता है वो डिजेनरेशन दिखता है उसका बेसल सेल लेयर का। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लाइकन प्लैनस का, जो मैं पैथोलॉजिस्ट मतलब मैं या मेरे जैसे पैथोलॉजिस्ट ही आपको बताएंगे। तो आपको पैथोलॉजिस्ट की मदद लेके आपको लीजन्स को ऐसे फाइनल डायग्नोस्ट करना चाहिए। अब प्री मैलिग्नेंट कंडीशन की बात करते हैं तो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है उसमें। इट इज अ क्रोनिक प्रोग्रेसिव स्कारिंग डिसीज which is most commonly found in the Southeast Asian population. First, it is reported by the Swartz and it is termed at that time Atropia idiopathica mucosae oris, and it is found in the Kenya in 5 Indian women. Later on, Joshi in 1953 termed it as an pre-malignant condition. मैंने बताया आपको कंडीशन क्या है, लीजन क्या है। अकॉर्डिंग टू पील्डबर्ग, हिस्टोपैथोलॉजिकली अगर हिस्टोपैथोलॉजी के हिसाब से उसको डिफाइन करते हैं तो इट इज ए इंसीडियस क्रोनिक डिसीज विच अफेक्ट द ओरल कैविटी एंड समटाइम इन द फेरिंग्स ऑल्सो। इसमें होता क्या है, वेसिकल इनिशियली देयर इज अ वेसिकल फॉर्मेशन एंड inflammatory reactions occur in the juxtaepithelial level. So some fibroelastic changes will occur in the lamina propria and epithelial atrophy is also there. Because of that epithelial atrophy, there is a stiffness occur and patient is unable to eat because of the trismus. सो इटियोलॉजी क्या है, चीफ इटियोलॉजी है एरिका नट। एरिका नट से क्या होता है कि उसमें फिजिकल केमिकल इंजुरीज होती है, बिकॉज ऑफ दैट इंजुरी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन से तो कोलेजन फाइबर का फॉर्मेशन एक्सेसिव कंटिन्यूअस रहता है, कोलेजन फाइबर फॉर्म होता रहता है। डिग्रेडेशन जो होता है कोलेजन फाइबर का कोलेजनेज एंजाइम के थ्रू, वो कोलेजनेज एंजाइम जो है वो डिक्रीज हो जाती है, कोलेजनेज एंजाइम का फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाता है। तो फाइब्रोसिस वाली प्रक्रिया चलती रहती है और डिग्रेड होने वाली प्रक्रिया खत्म हो जाती है। और ड्यू टू सम मिनरल डेफिशिएंसी वहाँ वस्कुलैरिटी भी डिक्रीज हो जाती है, तो डिफेक्टिव हीलिंग रहती है, हीलिंग डिफेक्टिव होता है, एपिथेलियल एट्रोफी होती है, तो स्टिफनेस वहाँ क्रिएट होता है और फाइब्रोसिस जो है कंटिन्यूअस रहती है, तो फाइब्रोसिस एक्सेसिव फाइब्रोसिस होती है। सम जेनेटिक और इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स आल्सो गेट इन्वॉल्व लाइक इन स्क्लेरोडर्मा इन द स्किन डिसीज। some role of the infections is also there. HPV, HSV और एप्स्टीन-बार वायरस का भी इन्फेक्शन हुआ तो CD4 और CD8 सेल्स का रेशो इम्बैलेंस हो जाता है, तो भी फाइब्रोसिस होता है। और एक रूल है वहां पे, अगर बीटा कैरोटीन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ग्रेड ऑफ ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के। अगर बीटा कैरोटीन जो है एक्सेसिव है तो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का ग्रेड लो होगा, अगर बीटा कैरोटीन कम है तो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का ग्रेड ज्यादा होगा। तो इसमें क्या है, ब्लैंक ओपेक फाइबर्स दिख रहे हैं आपका चीक के ऊपर, रिट्रोमोलर एरिया से ज्यादा स्टार्ट होता है और फिर धीरे धीरे सिवियरिटी जैसे बढ़ती है तो वो ऑर्बिकुलरिस ओरिस पे आ जाता है, तो इसलिए मुंह खुलना बंद हो जाता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि संकेन यूला है, दैट यूला गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द right side because there is a opaque white color band is there present, so because of that it gets shifted to the right side. ये एकदम टिपिकल फीचर है। कोई भी पेशेंट आपके क्लिनिक में आया जिसमें आपको शंकेन चीक्स दिख रहे हैं, मतलब चीक्स जो है अंदर दिख रहे हैं और प्रोमिनेंट मैलर बोन्स दिख रहा है, तो ये टिपिकल फीचर है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का। इट इज अ सीवियर केस ऑफ द ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। लिमिटेड माउथ ओपनिंग, नॉर्मली माउथ ओपनिंग जो है मेल में वो 46-45 mm के आसपास होती है और इसमें आप देखिए इट इज अप्रोक्सीमेटली 18 मिलीमीटर ओनली, तो ये लिमिटेड माउथ ओपनिंग है। टंग प्रोट्रूजन, रेस्ट्रिक्टेड टंग मूवमेंट हो जाता है, टंग प्रोट्रूड नहीं होता है। आप मीजो इंसाइजल एंगल से लेके टिप ऑफ द टंग पे मेजर करेंगे तो इट इज ओनली 22 मिलीमीटर, जबकि 50-60 मिलीमीटर होना चाहिए मेल में और 45-55 मिलीमीटर होता है फीमेल्स में। डॉक्टर राजकुमार, या 20 minutes to go now. 20 minutes ना? 20. Okay, no problem. Flexibility, cheek flexibility test is also there. आप क्या करना है, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉन करना है कमिशर एरिया से ट्रैगस लाइन पे और V1 और V2 मार्क करना है रेस्ट पोजीशन पे और जब ब्लोन करते हैं उसको तब, और उसके बाद उन दोनों का डिफरेंस मेजर करना है। वो 9.7 मिलीमीटर होना चाहिए नॉर्मली, हाँ मेल्स में, और फीमेल में 9 मिलीमीटर होना चाहिए। इसमें क्या होता है, पेशेंट इज अनेबल टू ब्लोन कैंडल, अनेबल टू विसल, अनेबल टू स्वेलो, सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्लिनिकल टेस्ट। जब भी आपके पास ऐसे लीजन्स आते हैं ओपीएमडीज वाले, तो आप क्या करना है, अगर कोई क्लिनिकल
एविडेंट नहीं है, कोई लीजन नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं है। अगर कुछ एविडेंट लीजन है और आप उसको पीएमडी कंसीडर कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको दो ऑप्शन है, आप उसको फॉलो अप पे रखेंगे, कुछ मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर वो नहीं रिजॉल्व होता है उससे, तो आप क्या करेंगे, उसमें से बायोप्सी टिश्यू निकालेंगे, उसको बायोप्सी निकालेंगे और कंफर्म करेंगे पीएमडीज को। अगर एविडेंट है, मतलब वहां पे क्लिनिकली एविडेंट कोई लीजन है और उसमें मैलिग्नेंट चेंजेस हैं, आपको लगता है कि मैलिग्नेंसी है उसके अंदर, तो आप ऐसे केस को क्या करेंगे, आप उसको बायोप्सी लेंगे कन्फर्मली। बायोप्सी लेने के बाद आप उसको जो है पीएमडी है वो कंफर्म करेंगे, मैलिग्नेंसी है वो कंफर्म करेंगे। अगर कोई डायग्नोसिस नहीं मिल रही मैलिग्नेंसी की, तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। अगर पेशेंट बोलता है नहीं मैं इसको काट के नहीं निकाल सकता हूँ टिश्यू, तो आप ऐसे केस में नॉन इन्वेजिव टेक्निक अपनाएंगे पेशेंट को। नॉन इन्वेजिव टेक्निक क्या है कि आप केवल स्क्रैप करके वो सेल्स को, उस लीजन के सेल्स को स्टडी करेंगे, उसको साइटोलॉजिकल स्टडी बोलते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है उसको। अगर उसमें पॉजिटिविटी आती है, मतलब उसमें अटिपिकल सेल्स आते हैं वो साइटोलॉजी में, नॉन इन्वेजिव टेक्निक में, तो आप बायोप्सी के लिए जाएंगे, क्योंकि अगर उसमें सेल्स हैं तो फिर इन्वेजिव टेक्निक करना ही पड़ेगा, बायोप्सी करना ही पड़ेगा। और अगर निगेटिव है तो फिर फॉलो अप पे रखना है। ये क्लिनिकल पाथवे है आपका, कोई भी लीजन अगर मुंह में दिखता है तो बायोप्सी, फर्स्ट बायोप्सी में बताऊंगा इन्वेजिव टेक्निक जिसमें कट करके निकालना है, और उसके बाद हम नॉन इन्वेजिव टेक्निक और एडजेंट टू बायोप्सी इसके अलावा क्या क्या कर सकते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा आपसे। तो बायोप्सी में क्या है कि पहले इट इज द ग्रीक टर्मिनोलॉजी। ग्रीक टर्मिनोलॉजी में बायोप्सी का मतलब, बायो मतलब लाइफ और ओप्सी मींस विजन। अर्नस्टन बेसिनर ने इसको पहले दिया था टर्मिनोलॉजी। और ये कोई भी टिश्यू आप निकालते हैं, एनी टिश्यू इफ यू रिमूव एंड इट इज सेंडेड टू द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन एंड डायग्नोसिस एंड यू गेट द फाइनल रिपोर्ट, देन इट इज कॉल्ड एज बायोप्सी। अगर आपने टिश्यू निकाला और फेंक दिया तो उसको बायोप्सी नहीं बोलेंगे। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल बिकॉज you diagnose clinically as a provisional diagnosis, but if you send this report to the pathologist and you get the diagnosis, then it is a final diagnosis. तो आप कोई भी बायोप्सी करने जा रहे हैं तो उसके लिए पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, और ये अच्छे हॉस्पिटल्स में ही हो सकता है। अगर आप इनफ कैलिबर हैं, आप उसको डील कर सकते हैं, तो आप अपने क्लिनिक में भी ये बायोप्सी कर सकते हैं, और उसी के लिए मैंने ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया हुआ है। डेफिनेटली डायग्नोसिस मिलता है, लीजन को आप एक्सीजनली निकालना चाहते हैं कि इंसिजनली निकालना चाहते हैं उसकी पता चलती है, और मेडिको लीगल वैल्यूज रहती है इसकी कि मैंने ये लीजन निकाला था, उस समय कैंसर नहीं था, बाद में कैंसर हो गया, आपको कोई ब्लेम नहीं कर सकता। या ये लीजन में डिस्प्लास्टिक चेंजेस थे, कैंसर में कन्वर्ट हो सकता था, मैंने पेशेंट को बताया था पर पेशेंट ने ध्यान नहीं दिया। ये सारे मेडिको लीगल वैल्यू के लिए भी आपको ये काम आता है बायोप्सी। टाइप्स, कितने टाइप्स के बायोप्सी हैं? बायोप्सी जो है वो दो टाइप के मेन है, एक्सीजनल और इंसिजनल। एक्सीजनल बायोप्सी मतलब वो बायोप्सी जिसकी साइज छोटी होती है, जिसमें आप लीजन को कंप्लीटली एक्साइज कर देते हैं। जैसे 1 to 2 सेंटीमीटर का लीजन है, आपने कंप्लीटली एक्साइज कर दिया और उसको बायोप्सी के फाइनल डायग्नोसिस के लिए पैथोलॉजिस्ट के पास भेज दिया, तो वो हो गया एक्सीजनल बायोप्सी। इंसिजनल बायोप्सी मतलब उसको डायग्नोस्टिक बायोप्सी भी बोलते हैं। वो एरिया जो 2 सेंटीमीटर से बड़ा हो, जिसको आप कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते। अगर कंप्लीटली रिमूव कर दिया तो पूरा ऑर्गन ही चला जाएगा, तो उसको रिस्टोर करना पॉसिबल नहीं है। तो उसमें क्या करते हैं, हम छोटा सा टिश्यू निकालते हैं और उसकी जांच करते हैं, उसको इंसिजनल बायोप्सी बोलते हैं। इंट्रा ऑपरेटिव बायोप्सी मतलब कोई कभी कभी क्या होता है कि मैलिग्नेंसी होती है और ड्यूरिंग ऑपरेशन ही जो है सर्जन चाहता है कि मुझे इसका रिपोर्ट मिल जाए, तो वो तुरंत टिश्यू निकालता है, तुरंत पैथोलॉजिस्ट के पास जाता है, फ्रोजन सेक्शन बनता है और तुरंत जांच होती है और पता चलता है कि नहीं इसमें और लीजन बाकी है, तो और थोड़ा कट करके एरिया निकालता है। तो उसको इंट्रा ऑपरेटिव बायोप्सी बोलते हैं, जिसमें ड्यूरिंग ऑपरेशन हम कई नंबर ऑफ बायोप्सीज करते हैं। एक्स्ट्रा ऑपरेटिव मतलब जो रूटीनली हम लोग करते हैं अपने क्लिनिक में, जिसमें हमने टिश्यू निकाला, पेशेंट को भेज दिया घर, फिर टिश्यू को बाद में सेंड किया अच्छे से लिख के पैथोलॉजिस्ट के पास, और फिर रिपोर्ट लिया, उसको एक्स्ट्रा ऑपरेटिव बायोप्सी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू मेथड बायोप्सी और डिवाइड होती है, जैसे स्काल्पेल बायोप्सी मोस्ट कॉमनली और चॉइसेबल बायोप्सी है। स्काल्पेल बायोप्सी 50 नंबर के ब्लेड से आप बायोप्सी करते हैं। ये कॉटरी और हाई कटिंग फ्रीक्वेंसी नाइफ बायोप्सी और लेजर बायोप्सी, ये वस्कुलर लीजन्स में यूज होते हैं ज्यादा, लेकिन इसमें कुछ प्रिकॉशन देना पड़ता है कि आप जब कट करें तो आप थोड़ा सा एरिया को कंसीडर करके कट करें, मतलब थोड़ा सा सेफ साइड छोड़ के करें, क्योंकि अगर आपने लीजन के ऊपर बायोप्सी लेजर चला दिया तो सारे डिटेल्स खत्म हो जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा सेफ एरिया लेके चलना पड़ेगा। पंच बायोप्सी, जो पंचेस अवेलेबल है मार्केट में, उससे आप कर सकते हैं। फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी और फाइन नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी, एक नीडल जो
अनएसेसेबल एरिया है जहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट नहीं ले जा सकते, पंच और स्काल्पेल नहीं ले जा सकते हैं, तो वहाँ पे आप या कोई स्वेलिंग है, आपको डर है कि ये वस्कुलर है, लिक्विड कंटेंट एरिया है, तो आप उसमें नीडल डाल के और उसमें से करेंगे। एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा। इंडिकेशंस क्या है? एनी एबनॉर्मल टिश्यू, नियोप्लास्टिक और आइदर रिएक्टिव, ग्रैनुलोमेटस लीजन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, एनी डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस और एनी अल्सर दैट इज प्रेजेंट मोर देन द 2 वीक, एनी हाइपरकेराटोटिक लीजन लाइक व्हाइट और रेडिश लीजन, इंट्राओसियस लीजन दैट कैन नॉट बी डायग्नोस्ड रेडियोग्राफी। कोई भी आपने रेडियोग्राफ लिया और आपको डायग्नोसिस नहीं मिल पा रही है उसकी, तो ऐसे लीजन को भी आप बोन में से भी इंसिजनल बायोप्सी ले सकते हैं, बोन का थोड़ा सा पार्ट निकाल सकते हैं आप। और एनी ड्रेनिंग साइनस विद द एपिथेलियल लाइनिंग है तो लाइनिंग को आप निकाल रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, लाइनिंग को साइनस में से, फिस्टुला में से लाइनिंग निकाल रहे हैं, वो लाइनिंग को भी आप सेंड कर देंगे पैथोलॉजिस्ट के पास, उसको उसमें भी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा और आपको फाइनल डायग्नोसिस मिलेगी। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है? सीरियसली इल पेशेंट लाइक हेमोफिलिक पेशेंट, मेडिकली कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, मेंटली रिटार्डेड पेशेंट हु आर टेकिंग द बिसफॉस्फोनेट मेडिसिन। न्यूरोफाइब्रोमा को आप बायोप्सी नहीं करेंगे क्योंकि दे हैव मोर चांसेस टू कन्वर्ट इनटू द न्यूरोफाइब्रोसार्कोमा। वस्कुलर लीजन्स में नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे क्या होता है कि प्रोफिजली ब्लीड हो सकता है। एस्थेटिक रीजन जैसे फेस हो गया, वर्मिलियन बॉर्डर हो गया लिप्स का, फ्लोर ऑफ माउथ हाईली वस्कुलर एरिया, तो वहां नहीं कर सकते आप क्योंकि एस्थेटिकली हैम्पर होता है वो। पेशेंट इज ऑन एंटीकोएगुलेंट थेरेपी। ये क्या हो गया? व्हाट इज दिस? डॉक्टर तेजस्विनी, Carry on. what is this? Okay. We are able to, Okay. we are able to see the slide. Yeah, thank you. Patient is on anticoagulant therapy or any inherited coagulopathy is there. So these are the contraindication. No need to do the biopsy of the normal tissue structure. जब भी कुछ भी सस्पिशियस रहा तभी करिए, नॉर्मल टिश्यू का बायोप्सी करने की जरूरत नहीं है। बायोप्सी के कुछ टेक्निक्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि विच आर द पोटेंशियली डेंजर एरिया, जैसे फ्लोर ऑफ द माउथ हो गया, एस्थेटिक जोन हो गया। फिर आप जब लीजन को बायोप्सी करने जा रहे हैं तो उसको पेंट किया जाता है, तो डोंट पेंट विद द आयोडीन कंटेंट टिंचर, आयोडीन हाई कलर्ड एंटीसेप्टिक, क्योंकि क्या होता है उससे डिटेल लॉस हो जाता है। और जब एनेस्थेशिया देते हैं तो आप उसको लीजन के अंदर एनेस्थेशिया नहीं देना है, थोड़ा सा 1 to 2 मिलीमीटर दूरी पे देना है, क्योंकि लीजन के अंदर एनेस्थेशिया आपने दिया तो एनेस्थेशिया की वजह से केमिकल रिएक्शन से वो डिटेल लॉस हो जाएंगे। दूसरा, आपका नीडल उस लीजन के अंदर जाएगा तो भी वो भी परफोरेशन देगा और टीयर ऑफ करेगा सारे फाइबर्स को, तो सारे डिटेल सेल्स को डैमेज करेगा, वो भी नुकसान हो जाएंगे। तो आपको इंजेक्शन थोड़ा दूर दूर देना है, शार्प इंस्ट्रूमेंट का यूज करना है। जब भी लीजन निकालें तो कुछ नॉर्मल टिश्यू भी निकालें, क्योंकि लीजन के साथ नॉर्मल टिश्यू नहीं रहेगा तो पैथोलॉजिस्ट को बहुत मुश्किल होता है कंपेयर करने के लिए कि ये कैसे कितना चेंजेस आया है, वो आपको बताने में मुश्किल हो जाएगा। और स्पेसिमेन को टूथलेस ट्वीजर से हैंडल करना है, जिसपे टूथ हो वो वाले ट्वीजर से हैंडल नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसे इंस्ट्रूमेंट से आप हैंडल करेंगे तो वो आपका डिटेल लॉस हो जाएगा उसमें। और स्पेसिमेन का केयर लेना है आपको कि थिन स्पेसिमेन है तो आपको कैसे उसको मैनेज करना है। थिन स्पेसिमेन है तो उसको पेपर पे रख के उसके ऊपर फिक्सेशन पहले जो हम लोग फॉर्मेलिन में फिक्स करते हैं वो फॉर्मेलिन के ड्रॉप उसके ऊपर डालेंगे कि थिन स्पेसिमेन म्यूटिलेट ना हो, और उसके बाद उसको फिक्स करेंगे ताकि वो स्ट्रेट रहे और हम उसको डिटेल में उसको देख सकें। और कलर देखना है आपको, अगर मेलानिन पिगमेंटेड कलर है, मतलब मेलानिन कुछ ब्राउन कलर का है, तो आप देख लीजिए कि ये मेलानोमा तो नहीं है, क्योंकि मेलानोमा के अंदर आपको ABCD रूल फॉलो करना पड़ता है। ABCD रूल क्या है? असिमेट्री, मेलानोमा की असिमेट्री होती है। जो लीजन होता है वो अगर हाफ में डिवाइड करें तो इधर का पार्ट और इधर का पार्ट दोनों अलग अलग होगा, एक जैसा मिलता हुआ नहीं रहेगा। बॉर्डर इरेगुलरिटी होगा, कलर उसका जो है ब्राउन ब्लैक होगा, डायमेंशन उसका 6 मिलीमीटर से ज्यादा होगा, और इवॉल्विंग होगा या एलिवेटेड पार्ट होगा। तो अगर कुछ भी ब्राउन कलर का ऐसा मुंह में दिखता है तो आप उससे थोड़ा डरें, क्योंकि वो मेलानोमा हो सकता है। मेलानोमा में ओमा लगा है तो बिनाइन मेलानोमा नहीं होता है, वो मैलिग्नेंट है, मैलिग्नेंट मेलानोमा हो। हाँ, तो उसको आप ये मत समझिएगा कि वो बिनाइन ट्यूमर है करके। दूसरा, अगर रेडिश कलर है, पर्पलिश कलर है, तो ये वस्कुलर लीजन हो सकता है। आप वस्कुलर लीजन को अगर बायोप्सी करने जाएंगे तो वो प्रोफिजली ब्लीड होगा, तो आपको वो ध्यान देना है कि उसको कैसे करना है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। These are the armamentarium. These are the armamentarium। उसमें आप क्लोरेक्सिडिन एंटीसेप्टिक यूज करिए, बीटाडीन मत यूज करिए। अगर यूज करना है तो डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज करिए। LA कार्ट्रिजेस है, ब्लेड है 50 नंबर का, पंचेस अवेलेबल हैं, ये सीजर है आपका बोन के लिए, जो है हैमर चीजल है। फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी के लिए आप नीडल वाइट बोर का नीडल यूज कर सकते हैं।
फॉर्मेलिन चाहिए ही चाहिए आपको, क्योंकि उसी में आपको स्टोर करना है, फिक्स करना है। उसमें आपको जो स्टोर करने के लिए कंटेनर है वो लेबलिंग होना चाहिए, उस पर लेबल करने के लिए एरिया होना चाहिए, वाइड माउथ का होना चाहिए, उस पर उसके ऊपर जो है आपका कैपिंग, टाइटली पैक्ड कैपिंग होनी चाहिए कि ताकि वो लीक ना हो उसमें से, फिक्सेशन, ये सब चीज़ों का ध्यान देना। ये बी फोर्सेप कहते हैं, जो ऐसे जगह पे जहाँ पे आपका फोर्सेप नहीं जा पाता है उस जगह पे यूज करने के लिए बी फोर्सेप है। बायोप्सी, बी इज इंडिकेटेड फॉर द बायोप्सी। प्रोसीजर के दौरान आपको कंसेंट लेना ही पड़ेगा पेशेंट का। एनेस्थेशिया देना है 1 to 2 मीटर अवे फ्रॉम द लीजन, और उसके बाद में आप जब टिश्यू निकाले तो टिश्यू को केयर लेना है कि टिश्यू डैमेज ना हो। इंस्ट्रक्शन देना है पेशेंट को कैसे खाना है, कैसे ब्रश करना है। अपना इमरजेंसी नंबर दीजिए पेशेंट को ताकि पेन होने पे वो आपसे कांटेक्ट कर सके। और जो बायोप्सी टिश्यू निकालते हैं जब आप पैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं तो उसमें पूरा डिटेल पेशेंट का लिखना है, चीफ कंप्लेंट से, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस से, कोई हैबिट है उसको, लीजन का क्या क्लिनिकल फीचर है, आप प्रोविजनली उसको क्या डायग्नोस कर रहे हैं वो लिखना है उसके ऊपर, कोई एक्स्ट्रा ओरल फाइंडिंग है वो लिखना है उसके ऊपर, कोई रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग है वो लिखना है, और किस साइट से बायोप्सी लिया आपने वो डिटेल लिख के पैथोलॉजिस्ट के पास भेजना है। और आपको फॉलोअप रखना है हमेशा, पेशेंट से भी बात करते रहना है और पैथोलॉजिस्ट से भी बात करते रहना है कि मेरे रिपोर्ट का क्या हुआ। पैथोलॉजिस्ट से बात करिए, पेशेंट से फॉलोअप करते रहिए कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सब चीज़ों का, कोई ब्लीडिंग, कोई पेन हो तो नहीं, ये सारी चीज़ों का आपको फॉलोअप करते रहना है। स्कैल्पेल बायोप्सी। I'm disturbing you, doctor. This meeting might end in 5 minutes. I request all the participants to please go to the chat box. I have shared a link of WhatsApp group. Please join the group so that if we want to extend the meeting, I need to create a new ID and password. So please go to that chat room and click on the link and join the WhatsApp group. स्कैल्पेल बायोप्सी में 15 नंबर का ब्लेड लेके आपको स्कैल्पेल बायोप्सी से टिश्यू लीजन निकालना है। नॉर्मल एरिया को भी थोड़ा सा इन्वॉल्व करना है निकालते समय। 4 पॉइंट एनेस्थेशिया, ये लीजन है, उसके अगल बगल 4 डायरेक्शन में जो है आपको एनेस्थेशिया देना है, 4 पॉइंट एनेस्थेशिया देना है। आपको लीजन जब निकालते हैं तो आपको उसका ओरिएंटेशन डिसाइड करने के लिए आपको सूचर प्लेस करना है। एंटीरियर सूचर अगर आप प्लेस करते हैं, लॉन्ग हेड का सूचर अगर एंटीरियरली है तो इसका मतलब उसके अपोजिट साइड वाला पोस्टीरियर हुआ। एक शॉर्ट हेड का अगर इंफीरियर है तो उसके अपोजिट साइड का सुपेरियर हुआ। तो ये सारे ओरिएंटेबल स्पेसिमेन होना चाहिए। अगर कोई वेसिकोबुलस लीजन है तो आपको उसके बुल्ले के ऊपर से आपको नहीं कट करना है, आपको बुल्ले अलॉन्ग विद द नॉर्मल नॉर्मल साइड से भी लीजन को निकालना है। एलिप्टिकल वेज शेप इंसिजन आपको देना रहता है। जो डिजायरेबल है वो उसकी डेप्थ, प्रॉपर डेप्थ होनी चाहिए, 3 to 4 मिलीमीटर की डेप्थ होनी चाहिए ताकि वो कनेक्टिव टिश्यू तक जा सके, और वेज शेप होना चाहिए। और उसका जो विड्थ है, विड्थ से लेंथ जो है वो 3 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। और जब वर्मिलियन लिप्स का आप लीजन निकाल रहे हैं तो वो पैरेलल होना चाहिए वर्मिलियन बॉर्डर को, और लॉन्ग एक्सिस ऑफ द लिप को वो पैरेलल होना चाहिए। तो उससे आपको निकालेंगे तो एस्थेटिकली हैम्परमेंट नहीं होगा। ये पंच है जिससे आप लीजन को निकालते हैं। कोई भी लीजन के ऊपर पंच लगाना है, अप्लाई करना है, जेंटली उसको रोटेट करना है और आप टिश्यू को निकाल सकते हैं। ये वीडियो है व्हाइट एंड रेड लीजन का, आप देख सकते हैं इस पे व्हाइट एंड रेड लीजन है। इसके ऊपर मैं जो है डिस्कोमेटिव जिंजिवाइटिस है, मैंने इसको लाइकन प्लैनस डायग्नोस किया है क्लिनिकली। और जब हम इसकी बायोप्सी करते हैं तो हम कैसे करते हैं वो दिखाता हूं मैं आपको इस वीडियो में। लोकल एनेस्थेशिया दिया आपने, 4 पॉइंट एनेस्थेशिया दिया आपने, लीजन से 1 to 2 मिलीमीटर अवे ऐसे देना है। ऐसे नहीं कि लीजन के अंदर ही दे देना है, क्योंकि नीडल डालने से वो पियर्स हो जाएगा लीजन और लीजन के डिटेल्स लॉस हो जाएंगे। फिर आपका ये पंच है, मोस्टली दिस पंच आर अवेलेबल इन द साइज 2 to 10 मिलीमीटर, बट मोस्ट कॉमन यूज इज 4 मिलीमीटर ऑफ द डायमेंशन। 4 मिलीमीटर का डायमेंशन इज सफिशिएंट फॉर द डेंटिस्ट। आप ये लीजिए 4 मिलीमीटर का, इसको प्रेस करिए, बाहर से एक्सटर्नल सपोर्ट दीजिए उसको थंब से, और जेंटली इसको प्रेस करके आपको सिंपली इसको रोटेट कर देना है। रोटेट कर देने से बायोप्सी टिश्यू इज सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया। सो आफ्टर दैट यू होल्ड इट इन द टूथलेस ट्वीजर and this part is uplifted one. This part is uplifted, then hold in the tweezer and get separated by using the scissor. Simply आप उसे काट के उसको सेपरेट कर लीजिए। तो बायोप्सी रिपोर्ट को आने के लिए 1 हफ्ते से 10 दिन का समय लग जाता है। अगर कोई स्पेशल स्टेन नहीं करवा रहे हैं या कोई हार्ड टिश्यू नहीं है, जैसे बोनी और टूथ स्ट्रक्चर नहीं है,
तो आपका सॉफ्ट टिश्यू का रिपोर्ट जो है एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर आ जाएगा। निगेटिव बायोप्सी आती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें मैलिग्नेंसी नहीं है। निगेटिव बायोप्सी का मतलब ये होता है कि जो टिश्यू आपने निकाला उस टिश्यू में कोई चेंजेस नहीं है, उस टिश्यू में कोई दिक्कत नहीं है, उसकी डायग्नोसिस हुई है, न कि पूरे लीजन की डायग्नोसिस हो गई है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप किस एरिया से निकालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस एरिया से आप टिश्यू निकालते हैं। जब रिपोर्ट मिलेगी आपको तो नॉर्मल, माइल्ड डिस्प्लाजिया, मॉडरेट डिस्प्लाजिया, सीवियर डिस्प्लाजिया या कार्सिनोमा इन सिटू ऐसी रिपोर्ट मिलेगी। तो उसमें सारे में बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहेगा। अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट है तो मतलब वो मैलिग्नेंसी नहीं है। आप इसको ट्रीट कर सकते हैं अपने यहाँ, लेजर से ट्रीट कर सकते हैं, एपिथेलियम को निकाल के ट्रीट कर सकते हैं। अगर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन टूट गया और ये अटिपिकल सेल्स कनेक्टिव टिश्यू में आ गया, लेमिना प्रोप्रिया में आ गया, तब ये कैंसर है। तब इसको आपको हायर सेंटर में रिपोर्ट करना पड़ेगा, सेंड करना पड़ेगा। वो आपको पैथोलॉजिस्ट बताएगा इसके बारे में। बायोप्सी की हीलिंग नॉर्मल वुंड हीलिंग की तरह ही होती है। प्राइमरी हीलिंग अगर आपने सूचर दे दिया तो प्राइमरी हीलिंग टेक्निक से होगी, अगर नहीं तो सेकेंडरी हीलिंग बाय ग्रेनुलेशन टिश्यू से होगी। ये वीडियो नहीं चल रहा है क्या? वीडियो नहीं चल रहा है। मैं इसको दूसरे अपने स्क्रीन पे जाके दिखाऊं क्या वीडियो? ये इसमें चल नहीं रहा है। चलो वहाँ पे तुम शेयर कर सकते हो तुम। देखिए इसमें क्या होता है, आपको जैसे इंसिजनल बायोप्सी करना है तो आप पहले सूचर दीजिए और सूचर को एक लूज नॉट बांधिए। लूज नॉट बांधने के बाद उस सूचर को खींचिए, आर्टरी फोर्सेप्स से या नीडल होल्डर से उसको खींचिए। खींचने से क्या होता है, एक ट्रैक्शन मिल जाता है। ट्रैक्शन मिलने के बाद आप उसके साइड में ब्लेड से कट करेंगे, 15 नंबर ऑफ ब्लेड से उसको कट करेंगे। तो ये क्या होगा, जो अनवांटेड मूवमेंट होता है, टंग पे है अगर लीजन तो अनवांटेड मूवमेंट होता है, वो मूवमेंट नहीं होगा और आप शार्प कटिंग दे सकते हैं उसको। तो ये उसके लिए है कि आप ट्रैक्शन बांध के खींच के और तब कर रहे हैं लीजन को, और वो पर्टिकुलर साइट ही निकलेगा। नहीं तो ऐसे अगर आप उंगली से लगा के पकड़ के उसको काटना चाहेंगे तो वो कटेगा नहीं प्रॉपरली। तो ये टेक्निक है इंसिजनल बायोप्सी करने से पहले ऐसे करके सूचर में बांध के करना चाहिए। दूसरा, टंग पे लोगों को डर रहता है कि टंग वाले लीजन को हम बायोप्सी करें कि नहीं करें, तो उसको करना चाहिए एकदम, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा वस्कुलर एरिया होता है, देखिए इसमें कैसे नॉट बांधा है, इसमें लूज नॉट बांधा है पहले, और इसके बाद जो उसको ट्रैक्शन दिया है, खींचा है, और उसके बाद जो है उसके साइड में कट कर दिया है। और जो टिश्यू निकला है, चूंकि टंग वस्कुलर एरिया है तो प्रोफिजली ब्लीड होता है। ब्लीड होगा तो आप उसको सूचर दीजिए, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। अगर सूचर से नहीं स्टॉप होती है ब्लीडिंग तो आप थर्मल कोएगुलेशन कर सकते हैं। अगर लेजर है तो लेजर से उसको कोएगुलेट कर दीजिए, नहीं है तो बर्निशर को गर्म करके उस पर लगा दीजिए, तो थर्मल कोएगुलेशन हो जाएगा, वो कोएगुलेट हो जाएगा और आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। तो ये प्रोसेस है बायोप्सी का। अब जैसे मैंने बताया कि एडजंक्ट क्या क्या है बायोप्सी, अगर इन्वेजिव टेक्निक नहीं जाना है, नॉन इन्वेजिव टेक्निक से काम करना है, मतलब कुछ कट नहीं करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसमें वाइटल स्टेनिंग आता है, टोलोडिन ब्लू। टोलोडिन ब्लू की एक स्टेनिंग आती है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी है सेकेंड, और दूसरा जो है कुछ मार्केट्स में आपके इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं जो रिफ्लेक्टेंस एंड फ्लोरोसेंस के बेसिस पे काम करते हैं। जो एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी होती है वो हम आपको वुडन स्पैचुला से निकालने के लिए बताएंगे। वैसे ही ब्रश भी अवेलेबल होता है मार्केट में, आप ब्रश लीजिए या नॉर्मल अपना ब्रश, टूथ वाला ब्रश भी लेंगे, उसको भी आप लीजन के ऊपर घुमा के, अगर फ्रेश ब्रश ले लिया आपने, जो टूथ ब्रश होता है फ्रेश, और लीजन के ऊपर घुमा दिया आपने और घुमा के उसको साइटोलॉजी बना दी, तो वो भी वर्क करेगा उतना ही। तो वो मैं आपको डिटेल में डिस्कस करता हूं। तो वाइटल स्टेनिंग क्या है? वाइटल स्टेनिंग ये चीज होती है कि टोलोडिन ब्लू एक पाउडर होता है, ये स्टेन जो है वो एसिडोफिलिक स्टेन होता है, मेटाप्रोमेसिया प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इसमें क्या होता है, ये टाटा मेमोरियल में भी यही फॉलो किया जाता है प्रोसीजर। कोई भी पेशेंट आपके क्लिनिक में आया और बोलता है कि सर मुझे देखिए, मुझे कैंसर तो नहीं हो रहा है, कुछ लीजन तो नहीं है, मुझे बर्निंग सेंसेशन हो रहा है कुछ दिन से, ये है वो है, अगर कुछ बोलता है और आपको उसको शंका को फाइंड आउट करना है कि नहीं वो करेक्ट तो नहीं है, तो आपको टोलोडिन ब्लू का जो है स्टेन यूज करना है। मार्केट में ये टोलोडिन ब्लू के स्टेन्स अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो आप इसको बना भी सकते हैं। टोलोडिन ब्लू का पाउडर लेंगे, वो पाउडर जो है
10 ml ऑफ 4 ग्राम का पाउडर लेंगे, 10 ml का एसिटिक एसिड लेंगे 1%, 4 ml का जो है अल्कोहल लेंगे, एब्सोल्यूट अल्कोहल, और उसके बाद जो है 86 ml का डिस्टिल्ड वाटर लेंगे और 100 ml का आपका एसिटिक एसिड का सोल्यूशन टोल्यूडिन ब्लू का बन जाएगा। तो ये 100 ml का जो सोल्यूशन बनेगा, तो इसको यूज कैसे करना है? आस्क पेशेंट टू फर्स्ट रिंस द माउथ बाय द वाटर ओनली। तो उससे क्या होगा, फूड डेब्रिज वेब्रिज जितना भी वो सब हट जाएगा। देन आफ्टर you ask patient to gargle with the 1% of acetic acid solution। एसिटिक एसिड सॉल्यूशन से पहले वॉश करेगा, क्योंकि ये जो स्टेन है वो एसिडोफिलिक है, तो एसिडिक, अगर एसिडिक एनवायरनमेंट रहेगा तभी ये वर्क करेगा। फिर उसके बाद ये स्टेन आप जो पर्टिकुलर साइट है उस पर अप्लाई करिए, या पूरे मुंह में ही उसको बोलिए कि आप गार्गल कर लो, पूरे मुंह में लेके वो गार्गल कर लेगा 20 सेकेंड के लिए। 20 सेकेंड के बाद आप क्या करिए, फिर से उसको बोलिए कि फिर से एसिटिक एसिड से करो। क्यों फिर से करना है एसिटिक एसिड से? इसलिए करना है 1% एसिटिक एसिड है कि जो एक्स्ट्रा स्टेन्स जमा रहेंगे कहीं पे भी फोल्ड में, जैसे पैपिले के अंदर आ सकते हैं, कोई म्यूकोबक्कल फोल्ड के अंदर आ सकते हैं, कहीं कहीं एक्स्ट्रा स्टेन, ओवर स्टेन जमा रहते हैं, तो वो फिर से निकल जाएंगे वो स्टेन सारे। उसके बाद आप एग्जामिन करिए, एग्जामिन करेंगे वाटर से, फाइनली वाटर से स्टेन रिंस करवा दीजिए और उसके बाद एग्जामिन करिए। एग्जामिन करने के बाद आपको दिखेगा कि ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ स्टेन है, तो ये जो स्टेन है तो ये सेल्स के न्यूक्लिक एसिड को स्टेन करता है। ये तो वो वही सेल्स होते हैं जो हाईली माइटोटिकली एक्टिव सेल्स हैं, जो माइटोटिकली एक्टिव सेल्स हैं उन्हीं को स्टेन करता है। मतलब दीज आर द एरिया ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम वेयर यू हैव टू टेक द बायोप्सी। यहीं से लेना है बायोप्सी, कहीं और से बायोप्सी नहीं लेना है। अगर आप यहां से लेंगे तो नॉर्मल ही आएगा, पैथोलॉजिस्ट नॉर्मल रिपोर्ट देगा, आप बोलेंगे नहीं कैंसर नहीं, और बाद में उसको कैंसर हो जाएगा। तो आपको जानना है ये एरिया से ही लेना है, पर्टिकुलर एरिया से, ये चीज को ध्यान में रखिए। एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी, दूसरा इन्वेजिव नॉन इन्वेजिव टेक्निक क्या है, एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी। इसमें क्या होता है, नॉर्मल हमारा एपिथेलियम जो है वो शेडेड होता रहता है, सेल्स जो है रिप्लेनिश होते रहते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं, और मैच्योर्ड सेल जो है शेडेड होते रहते हैं। इसी का हमको फायदा उठाना है और हम लोग एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी करते हैं। वही सेल्स को हमको लेना, उसी सेल्स की स्टडी करनी है। तो एक्सप्लोरेटरी साइटोलॉजी बहुत इजी है। जो पेशेंट डरता है कि हम बायोप्सी काट करके टिश्यू नहीं निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो उसमें एक्सप्लोरेटरी साइटोलॉजी करिए। अगर ये पॉजिटिव आता है तब आप बायोप्सी करने के लिए उसको राजी करवाइए, क्योंकि नहीं भाई ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब आपको सस्पिशियस है, आपको कैंसर हो सकता है, तो आप जो है बायोप्सी करवाइए, तब उसको करवाना ही पड़ेगा। उसके बाद इसकी सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी एंड पॉजिटिव प्रेडिक्टिविटी अलॉन्ग विद द नेगेटिव प्रेडिक्टिविटी जो वैल्यू है बहुत हाई है, 93.5, 50.6, 62.4 एंड 89.8% रिस्पेक्टिवली। इतना उसका सेंसिटिव रेट है, मतलब ये खराब नहीं है, आप इसको कर सकते हैं आराम से, क्योंकि 100% में 7% का ही डिफरेंस आ रहा है खाली, तो आप इससे कर सकते हैं। इसकी सेंसिटिविटी बहुत स्ट्रांग है। दूसरा, क्या मटेरियल्स यूज होंगे इसके अंदर जब आप साइटोलॉजी करने जाएंगे, तो आपको फिक्स करने के लिए कोई भी टिश्यू निकालते हैं, कोई भी सेल्स निकालते हैं, कोई भी स्वैब निकालते हैं, कोई भी लिक्विड निकालते हैं, कोई भी ब्लड निकालते हैं, उसको फिक्स करने के लिए आपको इथाइल अल्कोहल चाहिए होता है। तो 95% इथाइल अल्कोहल कॉपलिन जार के अंदर आप डालेंगे, ग्लास स्लाइड रखेंगे, क्योंकि उसी के ऊपर आप जो है स्मीयर बनाएंगे, उसी के ऊपर साइटोलॉजिकल स्मीयर बनाएंगे। फिर वो ग्लास स्लाइड मिक्स ना हो जाए कई पेशेंट का, इसीलिए आपके पास मार्कर होना चाहिए, ग्लास मार्कर, उसके ऊपर पेशेंट का नाम और डेट और किस डेट के लिए लिए हैं वो सब उस पर डिटेल नोट करेंगे। आपको वुडन स्पैचुला और मेटल स्पैचुला, सिंपल अपना सीमेंट स्पैचुला भी ले सकते हैं, वुडन स्पैचुला और मेटल स्पैचुला, बस ये स्टरलाइज होना चाहिए। और वुडन स्पैचुला जो है वो वेट होना चाहिए, मतलब उसको डिस्टिल्ड वाटर या सलाइन में डाल के रखना है, क्योंकि वो वेट रहे। अगर वेट नहीं रहेगा, ड्राई रहेगा, तो आप जब उस पर रब करेंगे तो ज्यादा ट्रॉमा प्रोड्यूस करेगा लीजन के ऊपर, और दूसरा जो सेल्स रहेंगे ना वो बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाएंगे, क्योंकि वेट ये ड्राई है तो जल्दी से लिक्विड पार्ट ले लेगा, मॉइस्चर ले लेगा, और सेल्स आपके जो है वेट डिहाइड्रेट हो जाएंगे। तो आपको इसको हाइड्रेट रखने के लिए आपको पहले ही इसको सलाइन में डिप करके रखना है, ये चीज का ध्यान में रखना है। अब जैसे ये लीजन है, यहाँ पे व्हाइट लीजन है, इस लीजन पे आपको वेट वुडन स्पैचुला से जो इस पे रब करना है। कितना रब करना है? इतने बार रब करना है कि माइक्रो ब्लीडिंग हो जाए, इस पे थोड़ा सा ब्लड इसके ऊपर आ जाए। अगर माइक्रो ब्लीडिंग हो गई मतलब आपने इपिथेलियम का भी पार्ट और थोड़ा सा कनेक्टिव टिश्यू में भी आप चले गए, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर होते हैं, न कि इपिथेलियम में होते हैं। तो आप रब करने से जब ब्लीड हो जाएगा तो इसका मतलब आप कनेक्टिव टिश्यू तक चले गए, और फिर उसी चीज को वो जो उस पे आएगा, जो भी आएगा आपकी आंखों से नहीं दिखेगा, कुछ भी आएगा, बस उसको आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है स्लाइड के ऊपर रब कर देंगे, रोटेट कर देंगे।
और देखेंगे यहाँ पे नाम लिखा हुआ है और उसका न्यूमेरिकल नंबर से जो भी उनकी डायरी मेंटेन करते होंगे क्लिनिक में वो लिखा हुआ है इसके ऊपर। फिर ये फिक्स कर देना है इथाइल अल्कोहल में और इसको भेज देना है पैथोलॉजिस्ट के पास। फिर वो पैथोलॉजिस्ट जो है आपको देखेगा और बताएगा कि उसमें सेल्स जो है वो नॉर्मल, जैसे इसमें सेल्स नॉर्मल सेल्स हैं, वो अटिपिकल सेल्स हैं क्या। अगर अटिपिकल सेल्स होंगे तो आप बायोप्सी पेशेंट को बोलना है कि बायोप्सी करवाइए। अगर नॉर्मल सेल्स हैं तो कोई बात नहीं, तब उसको फॉलोअप पे रख दीजिए और अपना जो भी ट्रीटमेंट आप मेडिकेशन देना चाहते हैं वो देख के आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। दूसरे जो स्क्रीनिंग एड्स अवेलेबल है मार्केट में, आप जो है ये फ्लोरोसेंस प्रिंसिपल पे, रिफ्लेक्टेंस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। इसमें लाइट होते हैं, लाइट आपको उस एरिया पे दिखाएंगे तो वो अगर लाइट को एब्जॉर्ब करता है एपिथेलियम, जैसे कोई एपिथेलियम एब्जॉर्ब करते हैं, कोई सेल्स जो है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं लाइट को, तो उसके हिसाब से अलग अलग कलर्स आते हैं। तो ये मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन ये इंडिकेटेड नहीं है, ये उतना अच्छा नहीं है। गोल्ड स्टैंडर्ड तो बायोप्सी है, उसके बाद साइटोलॉजी है और ये सब तो ऐसे ही है बस मार्केट में दिखाने के लिए। लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा क्योंकि सभी क्लिनिक्स में रहता ही है, लोग रखते हैं कि इमरजेंसी में चेक करने के लिए। तो ये आप देख लीजिए। तो ये जो लाइट है ये 440 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट्स होती हैं जो रिफ्लेक्ट करती हैं एपिथेलियम के अंदर से। तो हाइपरकेरोटिक एपिथेलियम है तो उसमें लाइट पास नहीं होगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा पीछे, तो उससे एसिटो व्हाइट कलर का, एकदम व्हाइट कलर का लाइट रिफ्लेक्ट होगा, तो वो हाइपरकेरेटिनाइज्ड है। वो हो सकता है कि रिएक्टिव लीजन हो सकता है कि उसमें कन्वर्शन हो, तो आप फिर बायोप्सी लेंगे उसका, वो इसके लिए बस। दूसरा वेलोस्कोप आता है जो फ्लोरोसेंस मेथड पे वर्क करता है। जब इसको आप दिखाएंगे नॉर्मल ऐसे टिश्यूज पे दिखाएंगे तो जो पेल ग्रीन कलर का दिखेगा, तो नॉर्मल टिश्यू जितने भी रहेंगे वो ग्रीन कलर के दिखेंगे, और जो भी अफेक्टेड हाइपरकेरोटिक लीजन होगा या माइटोटिकली एक्टिव लीजन होगा तो वो सारे ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर के दिखेंगे। तो इससे आप डायग्नोस कर सकते हैं इसको। तो ये एडजंक्ट टू बायोप्सी है ये। फिर कोई स्वेलिंग आ गई, स्वेलिंग है, आप उसमें आप जैसे यहाँ पे स्वेलिंग है, इतनी बड़ी स्वेलिंग है, तो आप इसको बायोप्सी नहीं कर सकते। इसको बायोप्सी कट करने जाएंगे तो फेशियल एस्थेटिकली भी हैम्पर होगा और यहाँ पे बहुत सारे वाइटल साइंस होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो आप इसको नहीं बायोप्सी कर सकते। तो ऐसी स्वेलिंग जो बहुत बड़ी स्वेलिंग है, हो सकता है ये वस्कुलर हो सकता है इसमें बहुत ज्यादा पस हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, वाइट बोर नीडल लेना है और उसके अंदर पियर्स करना है और उसको एस्पिरेट करना है। एस्पिरेट करके 1.1 ml का सॉल्यूशन जो है इस पे गिराना है स्लाइड पे, और दूसरी स्लाइड से जैसे ब्लड स्मीयर हम लोग बनाते थे ग्रेजुएशन टाइम में, वैसे ही दूसरी स्लाइड से एक दूसरे के ऊपर रब करके जो है आप स्मीयर बना सकते हैं, और फिर इसको फिक्स करके आप इसको भी भेज देंगे पैथोलॉजिस्ट के पास जांच करने के लिए। देखिए ये इस डायग्राम में स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें ट्यूमर के अंदर नीडल को डाला है। इसका फायदा क्या है, इसमें फायदा ये है कि इसमें वाइटल स्ट्रक्चर डैमेज नहीं होते हैं, और कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें मतलब ज्यादा डेंजर कुछ होने वाला रहता है तो वो भी चांसेस कम हो जाते हैं इसके अंदर। तो ये उसका बेनिफिट है। लेकिन नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है, आप इससे नहीं कर सकते गोल्ड स्टैंडर्ड, मतलब इसको अच्छा नहीं मान सकते आप। एक चीज और है इसमें कि इसमें आप जो 22 गेज की नीडल ही यूज करेंगे, 22 गेज की नीडल, और उसकी जो लेंथ होगी वो 1.5 इंच की होगी, मतलब 1.5 इंच की नीडल होगी और 22 गेज का नीडल होगा। Conclusion: dentists have the ability to diagnose any lesion initially or at early stage, so he has capacity to diagnose it as early as possible. Because of that diagnosis, the prognosis of the treatment will increases, the 5-year survival rate of the malignancy also get increases, and the life quality of the life of the patient is also increases. So the conclusion of this presentation is, don't forget to add your oral pathology in your routine dental practice, because आपने अगर इसको ऐड किया तो आपको क्या क्या फायदा होगा। आप जितने भी केसेस आपके यहाँ निकलते हैं आप सारे केसेस को ऐसे ही छोड़ देते हैं। एक तो आप वो सारे केसेस को डील करिए, और आपको कभी कभी तो आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, दांत निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो नीचे जब एक्सकैवेट करेंगे उसको तो पता चलेगा उसमें से कुछ टिश्यू निकल गया, तो वो टिश्यू निकल गया तो आप उसको फेंक देते हैं। उसको फेंकना नहीं है, आस्क पेशेंट टू गेट इट बायोप्सी डन, तो उससे आपको पता चलेगा कि वो रेसिडुअल सिस्ट था, कि इन्फ्लेमेटरी सिस्ट था, कि कोई सेंट्रल जॉइंट सेल ग्रैनुलोमा था, कोई रिएक्टिव लीजन था, ये सब चीजों का पता चलता है। और आप एक डायरी मेंटेन करिए, उस डायरी पे सब चीज लिखते जाइए ताकि
आपको कुछ दिन बाद पता चलेगा कि आपने इतने सारे केसेस किए और ये वैरायटी के केसेस किए। ऐसे तो आप सारे केसेस को पेरिएपिकल पैथोलॉजी बोल के काम करके हट जाते हैं, तो आपको अच्छी चीजों के बारे में जानकारी नहीं पड़ती और आपका क्लिनिक एक लेवल का बनेगा, डॉक्यूमेंटेड क्लिनिक बनेगा। तो ये सब प्रैक्टिस में डालने की कोशिश करिए। These are the references of my presentation. These are my some publications and my contact details are there. You can send your precious sample to my laboratory if you want, and I will give a final diagnosis for that. और मैं आपको ट्रीटमेंट प्लान भी समझा के दूंगा कि क्या इसमें ट्रीटमेंट करना चाहिए, हायर सेंटर में रेफर करना है कि इसको अटेंड करना है। तो ये एड्रेस है, आप यहाँ पे उसको भेज सकते हैं सैंपल्स को, और मैं आपको जो है बताता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Dr. Rajkumar. It was really wonderful and बहुत कुछ समझा जो कभी समझा नहीं था. Anyways, I can request all the participants to unmute and they can ask the questions since we have got some time now. Yeah.